Welcome to the New Era World School। इस विद्यालय की स्थापना अप्रैल 2018 में श्री यतेश चौधरी व श्री अनिल चौधरी ने बिनौली क्षेत्र में प्रतिभाओं की अनूठी संभावनाएं देखते हुए उन्हें विकसित व निखारने के उद्देश्य से की। उनका प्रमुख उद्देश्य था इस ग्रामीण आंचल में भी शहरों की मूलभूत व्यवस्थाओं को पहुंचाना। इसी को ध्यान में रखते हुए इस विद्यालय में उच्चतम स्तर की सबसे नवीन तकनीकों का समागम एक अत्यंत आधुनिक परिसर में किया गया है। यहाँ की प्रयोगशालाएं, कक्षाएं, क्रीडा स्थल व कक्ष सभी नवीनतम कंप्यूटरों से सुसज्जित हैं तथा विद्यार्थियों को इन सब का पूर्णतः प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया जाता है। प्रातः प्रार्थना भारतीय परंपराओं के अनुरूप अध्यापन कार्य प्रार्थना सभा से आरंभ होता है, जो विद्यार्थी स्वयं संचालित करते हैं। इस प्रकार आध्यात्मिक डोर से जुड़कर उनके दिन का शुभारंभ होता है। जब से मैंने अपने बच्चों का एडमिशन न्यू इरा वर्ल्ड स्कूल में कराया है, तब से बच्चे डे बाय डे प्रोग्रेस कर रहे हैं और हमें भी बेहद खुशी हो रही है कि जब से बच्चे स्कूल में आते हैं सब ऐसा लगता है कि बिल्कुल हम हर चीज़ से फ्री हो गए हो। और न्यू इरा वर्ल्ड स्कूल इस क्षेत्र में खुलना एक बहुत बड़ी प्रगति और गौरव का विषय है और आगे आने वाले समय में ये स्कूल बेहद ऊंचाइयों तक पहुँचेगा। बच्चे आने वाले कल का सवेरा होते हैं और यह सवेरा उतना ही उज्जवल होगा जितना उसे आज प्रशिक्षित किया जाएगा। हमारे जूनियर क्लासेस की टीचर्स ना ही इन बच्चों को पढ़ाती भी हैं और एक दोस्त की तरह इन बच्चों को समझाती भी हैं। आइए देखते हैं ये हमारी जूनियर क्लासेस की पढ़ाई। Riya, what is this? A for apple. Riya, tell me something about apple. This is an apple. It is round in shape. It is red in color. It is sweet and taste. I like apple very much. Ready for good habits? Wake up early in the morning. Wake up early in the morning. Brush your teeth. Brush your teeth. Wash your hands. Wash your hands. Take your bath every day. Very good. Clap your hands. Children, do you all like to eat mangoes? Do you all like to eat fruits? And what is this? This is a mango. Mango. This is a mango. Laksh, come. So listen carefully. Laksh will say some lines on mango. This is a mango. This is a mango. It is yellow in color. It is yellow in color. It is round in shape. It is round in shape. It is juicy fruit. It is king of all fruits. Very good. Say clapping, all of you. तो इस तरह रखा जाता है हमारे बच्चों की पढ़ाई का ध्यान।
morning to all of you. My name is Akshidama from class 4th. I stand here to tell something about my school. I love this school because my school is not help me in my studies but also in my sharpening skills for other co-curricular activities. I love dance. I am really fortunate that I am part of this school. आज के युग में लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल ये बहुत ही आम बात हो चुकी है। हर क्षेत्र में इनका उपयोग किया जाता है। इन सब का सही उपयोग हमारे बच्चों को भी आना चाहिए। इस उद्देश्य से हमारी सभी कक्षाएं कंप्यूटरकृत हैं। सारा अध्यापन कार्य शिक्षक स्मार्ट क्लास बोर्ड द्वारा करते हैं तथा बच्चों को भी इन पर कार्य करना सिखाया जाता है। Good morning all of you. I am Divyansh from class 7th. I will represent the soil profile. Soil profile is a vertical section of soil that is exposed when a soil pit or a hole is dug from the surface to the underlying bedrocks. The surface origins are many types. O origin. O origin is the topmost surface. It is a surface origin that comprises of organic material at the various stages of decomposition. Surface layer. It founds at the depth of 0 to 2 feet. Dark in color and soft in texture. Leaf litter. Leaves including leaves, needles, twigs, moss, lichens that are not decomposing. Humus. Rich organic material of plant, animal, organ in a state of decomposition. A origin. It is known as topsoil. Largely consists of minerals, sand, silt and clay. Topmost layer of mineral soil at the depth of 2 to 10 feet. Some humus present darker in color than the layers below. Biomantle. Most biological productive layer. Earthworms, fungi and bacteria live in this layer. Smallest and the finest soil particle. Discovery of cell. Who discovered cell and when? Robert Hooke discovered cell in 1665. He observed thin slice of cork, a part bark of tree under a microscope, saw a honeycomb structure. The slice of cork appeared like a small compartment which were further separated by wall. वाह, ये तो मुझे भी याद हो गया। अब मैं भी नहीं भूलूंगी इसे कभी। अब इसे बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। Good morning all of you. I Anshika of class 5th. Now I here tell about something my school. My teachers are very helpful. They help me solve all my problem. I am very happy because I got very good school. My school has a beautiful and very clean building and campus. There is a big playground and lots of games to play. I love shooting. I enjoyed a night camp at school. Thank you. क्लासेस में हम चीजों को समझ सकते हैं, पर लैब्स में हम उनका एक्सपेरिमेंट करके एक्सप्लोर करते हैं। हमारे यहाँ कंप्यूटर, साइंस, एसएसटी, मैथ्स लैब भी हैं, जहाँ बच्चे टीचर्स के सहयोग से एक्सपेरिमेंट करते हैं। Good morning everyone. I am Asta Solanki from class 8th. Today I stand here to represent presentation on my topic of area of circle. We have a circle of radius r. We cut circle in equal sectors and arrange these sectors in the form of parallelogram. We know that the circumference of circle is equal to 2 pi r. It equally divided in two parts and of length of parallelogram. So the length of parallelogram is pi r and the radius of circle becomes the height of parallelogram. This parallelogram is formed by arranging the parts of circle. Therefore, area of circle is equal to area of parallelogram is equal to base into height is equal to pi r into r. Then area of circle is equal to pi r square. Thank you. I hope you understand it. Good morning to all of you. Good morning. I am Sagar Khan from class 8. I stand here to represent my presentation on the topic of Pythagoras theorem. We have a right angle triangle of base 3 cm, perpendicular 4 cm and hypotenuse 5 cm. We draw first square taking hypotenuse as a side of square. We draw second square taking perpendicular as a side of square. We draw third square taking base as a side of square. And we draw small squares
on each square taking 1 centimeter square side. Good morning all of you. Good morning. I am Navya Dhama from class 8th. I am here to talk to you about eclipse. So what is eclipse? रिवॉल्यूशन के दौरान जब अर्थ, सन और मून एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, इस सिचुएशन को हम एक्लिप्स बोलते हैं। एक्लिप्स के मेनली 2 टाइप्स होते हैं, सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स। सबसे पहले हम बात करेंगे सोलर एक्लिप्स की। रिवॉल्यूशन के दौरान जब अर्थ, मून और सन एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, जिसमें कि मून अर्थ और सन के बीच में होता है, जिससे कि मून की शैडो अर्थ पर पड़ती है और मून सन को ढक लेता है। मून की रेज अर्थ को नहीं पहुंच पाती। ये हर 18 महीनों में एक बार होता है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम नव्या धमा फ्रॉम क्लास 8th. I am here to talk to you about my school. So, what are the main requirements to form an ideal school? I think that the main requirements are well-trained teachers, extracurricular activities, and a very cooperative staff. I have all this in my school, which is New Era World School. The greatest advantage of my school is here the teachers are well-trained. They have mastery over their subjects. We have lot of extracurricular activities in our school, such as sports, dance classes and music classes. The school has a well-maintained library, maths lab, computer lab and SST lab. The administration block has a separated area. It has a very big building. My school is spread over a vast stretch of land. It has a very big assembly ground and a sport ground in which the students play. It has a well-maintained classrooms in which we study smartly. There are smart boards in our classroom. बच्चों की रुचियों का भी खास ध्यान रखा जाता है। बिनौली प्रतिभाओं का क्षेत्र है, इसलिए हमने ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा जो बच्चों के संपूर्ण विकास में सम्मिलित ना किया हो। संगीत, नृत्य व चित्रकला भी उसी का हिस्सा है। Walking with the Lord, we are walking together. Walking with the Lord, we are walking together. Lift up our hearts for your walking to God. Lift up our hearts for your walking to God. Singing with the Lord, we are singing together. Singing with the Lord, we are singing together. Lift up our hearts for your singing to God. Lift up our hearts for your singing to God. Jime tu dare dani dim ta dare dani dim ta na dare na dim ta dare dani dim ta dare dani dim ta na dare na o dani der der tani ta na dare na. Satyam Shivam Sundaram, Satyam Shivam Sundaram, Satyam Shivam Sundaram, Sundaram. See, complete education is complete development of a human being. अब क्या है, धीरे धीरे एजुकेशन को तो हमने कहने लगे सिर्फ लिखाई पढ़ाई, फिर दूसरी बात आती है या तो सिर्फ गेम्स। बट एज़ फार एज आई फील देर आर लॉट मैनी थिंग्स जिनको हम एजुकेशन कहते हैं। बच्चे का बड़ा होना, संवरना, दुनिया को समझना, अपनी बात समझा पाना और अपना एक मुकाम ज़िंदगी में बनाना, दैट इज़ कंप्लीट एजुकेशन, जिसमें बंदा कॉन्फिडेंट के साथ हमारा आगे बढ़े। आई फील दैट इज़ द एजुकेशन विच वी वांट टू गिव टू आवर चिल्ड्रन। मेरे हिसाब से एजुकेशन में बच्चे की सिर्फ पढ़ाई लिखाई या गेम्स ही शामिल नहीं है, जैसा कि आजकल चल रहा है। हम जिस मकसद से यहाँ पर हैं, जिस विषय को हम लेके चले हैं, जो हमारा विज़न है आगे का, हम ये चाहते हैं हमारा बच्चा हर फील्ड में आगे बढ़े, उसके अंदर एक आत्मविश्वास जागे, वो इस समाज में अपना एक स्थान बना सके और उसकी पहचान उसके अपने आप से बने। वो एजुकेशन है जो मेरी नज़र में, जो कि कंप्लीट एजुकेशन होनी चाहिए बच्चों की। हम वही बच्चों को देना चाहते हैं।
हमारा स्मार्ट क्लासेस मतलब केवल हार्डवेयर लगा के कंप्यूटर से पढ़ाना नहीं है। हम ये चाहते हैं कि उन सब चीज़ों का पूरा उपयोग हो, सिर्फ टीचर ही ना करे, बच्चा भी उस चीज़ को यूज़ करे, बच्चा उसका उपयोग समझे। वो चीज़ जो है एक हमारे लिए एडवर्टिजमेंट का माध्यम ना बने, बल्कि एक काम करने का माध्यम बने। जैसे कि आजकल हम एक कलम का इस्तेमाल करते हैं, ये ना जानते हुए हम ये नहीं सोचते कि हमारे हाथ में कोई बहुत बड़ी टेक्निक है, वो हमारे लिए काम करने का इंस्ट्रूमेंट है। आज का बच्चा जो नए भारत में आ रहा है, उसके लिए आगे के आने वाले युग में कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन, स्मार्ट टैब्स, ये चीज़ें नॉर्मल चीज़ें होंगी। वो बच्चे को आज से ही सीखना है। हमारे यहाँ का बच्चा खुद स्मार्ट क्लास को ऑपरेट करता है, बोर्ड्स को यूज़ करता है, अपनी प्रेजेंटेशंस बनाता है, पूरी क्लास को दिखाता है और टीचर के साथ सहयोग से वो नई नई चीज़ रोज़ सीखता और सिखाता है। उसके लिए ये चीज़ उसके काम करने का एक माध्यम है, पढ़ाई का एक हिस्सा है। उसके लिए ये सब स्मार्ट क्लासेस भी उसकी किताब, उसकी कॉपी, उसकी रबड़ और पेंसिल का काम कर रहे हैं। स्मार्ट क्लास में कंप्यूटर का क्योंकि इस्तेमाल है तो उसमें बच्चे की जो सीमाएं हैं वो फैल जाती हैं। किताब में बच्चा केवल पढ़ पा रहा है और जो एक आध तस्वीर है उसको देख पा रहा है। अब स्मार्ट क्लास में क्योंकि वो सुन भी रहा है, उसमें कमेंट्री है, वो देख भी रहा है विजुअल को, जो स्टिल फोटोग्राफ है उसके अंदर 3D और मूवी टाइप की भी फिल्में चलती हैं जिससे को बच्चा देख रहा है। तो जब बच्चा उनको देखता है, सुनता है, समझता है तो उसके अंदर वो चीज़ हमेशा के लिए एनग्रेव हो जाती है, उसके अंदर लिख जाती है, छप जाती है बच्चे में और वो उसको ताउम्र याद रहती है। स्मार्ट क्लासेस का पूरा प्रयोग अगर क्लासरूम टीचिंग में हो तो बच्चे की जो स्मरण शक्ति है उसमें बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा मिलता है बच्चे को और वो उसको जीवन भर याद रहती है, जीवन पर्यंत याद रहती है। स्मार्ट क्लास का हम वहाँ से फ़ायदा उठा रहे हैं जैसे कि बच्चे घर में टेलीविज़न देखते हैं। अब टेलीविज़न में बच्चे ने जो भी सीरियल देखा या कोई फिल्म देखी उसको याद नहीं कराना पड़ता, वो उसको ज़िंदगी भर याद रह जाती है। हम जो किताबों से पढ़ा रहे हैं और उसको लिखा रहे हैं वही चीज़ जब हम इसको स्मार्ट क्लास में कंप्यूटर के ज़रिए उसको दिखाते हैं तो वो भी बच्चे के दिमाग में उसी तरीके से आती है। वो उसको बिना प्रेशर के सिर्फ एक एंजॉय करते हुए देख के पढ़ता है, सीखता है और वो उसकी बात हमेशा के लिए उसके मन में बैठ जाती है। आगे के आने वाले वर्षों में भी वो चीज़ उसको फ़ायदा देती रहती है क्योंकि वो भूलता नहीं उन बातों को। न्यू एरा वर्ल्ड स्कूल के छात्रों से हम ये उम्मीद रखते हैं कि वो किसी भी बने बनाए फ्यूचर के इंतज़ार में नहीं रहेंगे। उनको वो पढ़ाई देंगे कि वो अपना फ्यूचर खुद निर्धारित करेंगे और उस फ्यूचर को बनाकर उस ओर आगे बढ़ेंगे। प्रतिभा पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। हो सकता है इस क्षेत्र से ही अगली प्रतिभा संगीत, नृत्य, अभिनय में आगे आए। न्यू एरा वर्ल्ड स्कूल में अध्यापकों को भी प्रतिदिन कक्षा में जाने से पहले अध्यापन कार्य के संबंध में सूक्ष्म बिंदुओं पर चर्चा के लिए प्रेरित किया जाता है और उनकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए समय समय पर उन्हें शिक्षा जगत की अनुभवी व्यक्तियों द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। So good morning everybody. Good morning sir. So one common problem as I heard you all are facing from student side. What is the problem? That students are not able to learn the things properly. They do not sustain it for a longer time. बच्चे करते हैं उसको जल्दी से भूल जाते हैं। हम आज लर्न कराते हैं कोई चैप्टर, वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं, या तो वो लर्न नहीं कर पाते या वो जल्दी से उसको भूल जाते हैं। तो आज हमें समझना है कि इसके पीछे की व्हाट इज द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड इट। चलते हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की ओर। यूपी से बड़े बड़े दिग्गज स्पोर्ट्समैन निकले हैं जिससे ये प्रमाणित होता है कि हमारी मिट्टी में खेल कूद की अपनी एक अलग पहचान है। बिनौली में युवाओं के रुझान को देखते हुए हमारे स्कूल में शूटिंग रेंज की स्थापना भी की गई है जो कि अत्याधुनिक है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे स्कूल में टॉप लेवल के कोच अपॉइंट किए हैं जो बच्चों को सिर्फ खेलना ही नहीं बल्कि सही टेक्निक के साथ एक्सपर्ट बनाते हैं। शूटिंग के अलावा बाकी सभी प्रमुख खेलों की भी संपूर्ण सुविधा विद्यालय में रखी गई है। हमारे न्यू एरा वर्ल्ड स्कूल का उद्देश्य बच्चों का संपूर्ण विकास और एक नए युग का निर्माण। तो ये है हमारे स्कूल की तैयारी आपके बच्चों के भविष्य के लिए।
पहल तो हमने कर दी, अब बाकी के कदम आपको बढ़ाने हैं। न्यू एरा वर्ल्ड स्कूल, लर्निंग टुडे, लीडिंग टुमारो।